بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد طاہر اقبال آج ایک بڑے دلچسپ ٹاپک کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں. دوستو, آج جب میں نے صبح کے اخبارات پڑھے تو پہلی شاہ سرخی جو میرے سامنے تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے, اپنی فورسز وہاں سے نکال رہا ہے اور ملٹری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم افغانستان کی فورسز کے حوالے کر رہا ہے. جنرل اسکاٹ جو کہ امریکی فوج کے نمائندے تھے افغانستان کے اندر اور جو امریکی فوج ہے اسے کنٹرول کرتے رہے, وہ بھی اب وہاں سے دستبردار ہو رہے ہیں. یہ ایک سمبولک جیسچر ہے کہ امریکہ اب آخر کار افغانستان سے نکل رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ افغانستان کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اب یہ سوال بے شمار مائنڈز میں ہوگا, برینز کے اندر ہوگا. آج اس سوال کا جواب تراشنے کی کوشش کریں گے, کچھ پاسبلٹیز آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے بڑی امپورٹنٹ بات, افغانستان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ گریو یارڈ ہے, قبرستان ہے امپائرز کا, سلطنتوں کا. مختلف رولرز جو ہیں افغانستان میں آتے رہے, کشت و خون بہاتے رہے, یہاں پر حکومت بھی قائم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سسٹین نہیں کر سکے, اپنی حکومتوں کو مینٹین نہیں کر سکے. سب سے پہلی اگزامپل میں آپ کے سامنے منگولز کی رکھوں گا. وہ اس علاقے کو ایز روٹ یوز کرتے رہے اور حکومت قائم کرنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ سسٹین نہیں کر سکے. اس کے بعد مغلز جو ہیں وہ آئے, وہ بھی ڈائریکٹ اس علاقے کو کنٹرول نہیں کر سکے. اس کے بعد پچھلی 3 صدیوں کی اگر بات کی جائے تو 3 سپر پاورز افغانستان کے اندر شکست کھا چکی ہیں. سب سے پہلے 19ویں صدی میں گریٹ بریٹن یہاں پہ آئے, حکومت قائم کرنے کی کوشش کی, بہت کشت و خون ہوا, خون ریزی ہوئی لیکن حکومت قائم نہیں کر سکے. اس کے بعد 20ویں صدی میں USSR وہ یہاں پہ آیا, 9 سال یہاں پہ رہا, کشت و خون ہوتا رہا, خون بہاتے رہے یہ لوگ, لیکن اپنی حکومت قائم نہیں کر سکے. اور اب 21ویں صدی میں امریکہ کی اگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. 20 سال وہ افغانستان میں رہے لیکن خوب مار کھائی, جوتے بھی کھاتے رہے, اپنے فوجی جو ہیں وہ مرواتے رہے. اب وہ آخر کار واپس جا رہے ہیں اور بے شمار آرٹیکلز اس چیز پر لکھے جا چکے ہیں. ایک اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل چھپتا ہے جولائی 10 2021 کو, 2-3 دن پہلے, امریکاز وار ان افغانستان از اینڈنگ ان کرشنگ ڈیفیٹ. مطلب اس طرح کے بے شمار آرٹیکلز جو ہیں نیو یارک ٹائمز کے اندر, واشنگٹن پوسٹ کے اندر چھپ چکے ہیں کہ آخر کار امریکہ افغانستان کے اندر اپنی ڈیفیٹ کے ساتھ یہاں سے بے دخل ہو رہا ہے, رخصت ہو رہا ہے, منہ کی کھانی پڑی, شکست کھا کر یہاں سے نکل رہا ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہیں, امریکہ افغانستان سے کیوں نکل رہا ہے, وہ آپ لوگوں کے سامنے ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلی وجہ جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ایک امریکہ کے اندر ایک ادارہ ہے, اس کا نام ہے US اسٹریٹجک کمانڈ. یہ امریکہ کے جو وار ہیڈز ہیں, نیوکلر آرسنلز ہیں, انہیں کنٹرول کرتا ہے, ان کی دیکھ بھال کرتا ہے, ان کی پروٹیکشن کرتا ہے. اس کو جو ہیڈ کرتے ہیں وہ چارلس رچرڈ ہیں. انہوں نے 2-3 ماہ پہلے کانگریس کی ایک میٹنگ تھی, اس میں اس بات کا اعتراف کیا کہ جو رشیا ہے وہ بڑی تیزی سے اپنی نیوکلر کیپیبلٹیز کو بڑھا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی رشیا جو ہے 80% نیوکلر کیپیبلٹیز بڑھا چکا ہے, اپنے ویپنز کو ماڈرنائز کر چکا ہے. اب ہمیں بھی اس کی طرف بڑھنا پڑے گا. اگر ہم اپنے سارے پیسے جو ہیں جنگوں میں ڈالتے رہے, اپنے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے پیسے جنگوں میں ڈالتے رہے, یہاں خرچ کرتے رہے, تو پھر ہم کافی پیچھے رہ جائیں گے اور یہ ممالک جو ہیں رشیا اور چائنا جو ہیں یہ آگے بڑھ جائیں گے. اور یہ پہلے ہی دنیا کے بے شمار ملکوں کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھا چکے ہیں اور مزید بڑھا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا جی ہمیں اپنے نیوکلر وار ہیڈز کو ماڈرنائز کرنے کے لیے $1.2 ٹریلین چاہیے. اب آئرونیکلی یہ اتنی ہی رقم ہے جو امریکہ لگ بھگ یہ رقم جو ہے پچھلے 20 سالوں میں افغانستان پر لگا چکا ہے. مختلف چیزوں کی مد میں ٹینکس ہیں, اینٹی ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں اور ساری چیزیں اگر اس میں ڈال دی جائیں. تو سب سے پہلی یہ وجہ ہے, ایک ملٹری وجہ ہے. ایک پینٹاگون جو ہے وہ اب چاہ رہا ہے کہ جی اس جنگ کو خیر باد کہہ دیا جائے, یہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے, اور اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے اگر ہم دنیا کے اس گلوب کے اندر ایک سپر پاور کے طور پر اپنی پوزیشن کو سسٹین کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی ریزن یہ. نمبر 2 پہ ریزن یہ ہے کہ امریکن ٹیکس پیئرز جو ہیں, امریکنز جو ہیں, خود وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اب سوالات کرتے ہیں جی آپ ہمارے سارے پیسے جو ہے جنگوں میں لگا رہے ہیں اور ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے, تو آپ ان جنگوں کو چھوڑ کے اپنے ملک پر توجہ دیں. اور ایک رپورٹ چھپتی ہے, اس میں کہا گیا کہ پچھلے 20 سالوں میں 9/11 کے بعد امریکہ نے جتنی جنگیں سٹارٹ کی, جس میں افغانستان ہے, سیریا ہے, عراق ہے, ایران کے اندر بھی یہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہے, اس میں $6.4 ٹریلین خرچ کر چکے ہیں.
जस्ट इमेजिन। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर 2.6 ट्रिलियन डॉलर ये खर्च कर चुके हैं। तो ये अब चीजें देखें, जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो लोग जो हैं वो सवालात करते हैं कि आप हमारे जो टैक्स के पैसे हैं हमसे कलेक्ट करते हैं, वो हमारी बहबूद पर खर्च होने चाहिए, आप बाहर जंगों पे लगा रहे हैं। तो ये 2 रीजंस मैंने आप लोगों के सामने रख दी। और तीसरी रीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब देखें, आप जब जंग में जाते हैं तो वहां पर आप अपने फौजी भी मरते हैं, आपके लोग मरते हैं, तो कैजुअलिटीज होती हैं, तो डोमेस्टिक प्रेशर जो है वो रेज होता है। तो इस जंग में वाटसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स एट ब्राउन यूनिवर्सिटी, इन्होंने एक सर्वे किया और उन्होंने बताया कि जी अब तक पिछले 20 सालों में अमेरिका ने जितनी जंगें लड़ी, 8 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 21 लाख लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं अपने घरों से। और अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं 2442 अमेरिकन ट्रूप्स मर चुके हैं और 20,666 जो अमेरिकी ट्रूप्स हैं, अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, मुख्तलिफ अज़ा जो हैं इस जंग में लूज कर चुके हैं, गंवा चुके हैं। उसके बाद 3,880 जो प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर, और 1,144 जो हैं नेटो के जो बाशिंदे हैं, जो लोग हैं, जो इनके पर्सनल हैं, वो मारे जा चुके हैं। तो ये सारी कैजुअलिटीज़ अगर मिलाई जाए, उसके बाद सिविलियन कैजुअलिटीज़ होती हैं, तो अमेरिका के लोग फिर सवाल करते हैं, जब वहाँ पर ताबूत पहुँचते हैं, लाशें पहुँचती हैं, तो वो फिर लोग सवाल करते हैं, पिक्टोरियल इमेजेस होते हैं, सोशल मीडिया गर्म होता है, लोग सवाल करते हैं कि आप इस जंग से अपनी जान छुड़ा लें और तवज्जो अपने मुल्क पर दें। तो ये तीसरी वजह थी कि कैजुअलिटीज़ हो रही हैं अमेरिकन फोर्सेस की, उसके बाद डोमेस्टिक प्रेशर रेज होता है। उसके बाद चौथी रीजन ये है कि तालिबान खुद एक रियलिटी बन चुके हैं। जब आप दोहा में इनके साथ टेबल पर बैठते हैं और आमने सामने होकर बातें करते हैं, तो फिर आप मान रहे हैं कि ये तालिबान एक रियलिटी है। तालिबान को एक रियलिटी तस्लीम जब आप करते हैं तो इसका मतलब है आप वहां से निकलना चाह रहे हैं और चीजें उनके साथ नेगोशिएट करना चाह रहे हैं ताकि पीसफुल सेटलमेंट हो। उसके बाद पांचवी रीजन ये है कि हाल ही में तालिबान के स्पोक्स पर्सन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक रीजन है, मोहम्मद नईम वारदक इनके स्पोक्स पर्सन, इन्होंने CNN न्यूज़ 18 को इंटरव्यू में कहा कि जब हमारी हुकूमत कायम हो जाएगी तो हम एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी को डेवलप करेंगे अफगानिस्तान के अंदर, और जो हमारे गिरदोनवा में हमारे नेबर्स हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। हम अपनी ज़मीन जो है, अफगानिस्तान की सरजमीन जो है, किसी प्रॉक्सी वॉर के लिए इजाज़त नहीं देंगे, ना हम दूसरे ममालिक के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे। बड़ी पॉजिटिव एक डेवलपमेंट थी कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान बैठे हैं उनके ग्लोबल डिजाइन्स नहीं है, डोमेस्टिक डिजाइन्स है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सरहदों के अंदर रहते हुए एक इस्लामी जो शरीयती निज़ाम है उसको डेवलप किया जाए, बनाया जाए। उस पर आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन एक उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि हम अपने गिरदोनवा में जो ममालिक हैं उनमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो यहाँ से जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं और बिलखसूस जो अमेरिका है वो इस चीज़ से इनकरेज फील करता है और बात करता है कि जी अब ये लोग भी मेच्योर हो चुके हैं और अच्छे डिसीजन करने के काबिल हो चुके हैं, तो अब इनको मौका दिया जाए, इनको भी एज स्टेक होल्डर्स साथ शामिल किया जाए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है। और एक और बड़ी छठे नंबर पर बड़ी इंपॉर्टेंट वजह कि ये जो अफगानिस्तान था, ये मुख्तलिफ जो एक्टर्स, जो स्टेट एक्टर्स हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, उनकी एक अमाजगाह बनता जा रहा था। और आप देखें दाइश यहाँ पे आई, मुख्तलिफ ग्रुप्स यहाँ पे आए, लड़ते रहे और सिविलियंस का नुकसान हुआ, ट्रूप्स का नुकसान हुआ, नेटो फोर्सेस का नुकसान हुआ। और एक रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी, बड़ी इंपॉर्टेंट, जून 26, 2020 में, उसका टाइटल ये था, रशिया सीक्रेटली ऑफर्ड अफगान मिलिटेंट्स बाउंटीज टू किल यूएस ट्रूप्स। मतलब है कि रशिया जो है अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उन्हें पैसे दे रहा है, उन्हें सपोर्ट कर रहा है, उन्हें एम्युनिशन दे रहा है, वेपन्स दे रहा है कि आप अमेरिकी फौजियों को मारें। तो जब इस तरह की खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती हैं और इनके बारे में कुछ ना कुछ हो सकता है, सदाकत हो, तो फिर अमेरिकी जो हैं वो ये सवाल करेंगे, इस सवाल को उठाने में हक बजानब होंगे कि आप छोड़ दें इनका पीछा, अपनी फौजी ना मरवाएं। तो एक ये भी एक रीजन बनती है। सातवीं रीजन और आखिरी रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि अमेरिका के अंदर जब भी डेमोक्रेट्स जो हैं वो बरसरे इक़्तिदार होते हैं, रिपब्लिकन्स हैं और डेमोक्रेट्स हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। रिपब्लिकन जो है वो जंगें छेड़ते हैं और डेमोक्रेट जो है अमेरिका को उन जंगों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जब भी अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ी जाए, मैं 40-50 साल पीछे जाता हूं, सदर निक्सन आए, उन्होंने
वियतनाम के अंदर रोल प्ले किया, चाइना के साथ पंगे लिए और रशिया के अंदर कोल्ड वॉर को प्रोलॉन्ग किया और शिद्दत इख्तियार की रशिया के अंदर 1969 से लेकर और 64 तक ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद सदर रेगन आए, उन्होंने ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी एक स्टार्ट किया और फिर कोवर्ट ऑपरेशंस किए, रशिया के अंदर इजाज़त दी और बड़े हालात ख़राब किए। ये भी एक रिपब्लिकन थे। ये सारे रिपब्लिकन हैं जो जंगे छेड़ते थे। उसके बाद बुश सीनियर की बात की जाए, गल्फ वॉर वो लड़ते हैं, ईरान के अंदर, इराक के अंदर इन लोगों को लड़वाते हैं आपस में, कुवैत उसमें शामिल किया जाता है और बेशुमार जो सिविलियंस जो हैं उनकी अमवात का ये बायस बने। 1989 से लेकर 1993 तक ये अमेरिका के अंदर इन्होंने रूल किया, बुश सीनियर। उसके बाद इनके बेटे आते हैं, हम जॉर्ज क्लिंटन को छोड़ दें, अब क्लिंटन को छोड़ दें हम, क्योंकि वो डेमोक्रेट थे। जॉर्ज बुश जब आते हैं तो सबसे ज़्यादा तबाही जॉर्ज बुश जो हैं, इनके जो बेटे हैं बुश सीनियर के, उनके दौर में हुई। अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने लड़ाई छेड़ी, इराक के अंदर लड़ाई छेड़ी और बेशुमार लोगों की अमवात का बायस बने। उसके बाद ओबामा जो थे वो डेमोक्रेट थे और उन्होंने जब वो आए तो पहली दफ़ा ये ऐलान किया कि अमरीकी फोर्सेस को हम यहाँ से निकालेंगे, लेकिन पेंटागन की मर्जी शामिल होती है, वो एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स है, उनकी मर्जी के बगैर अमेरिका जो है वहाँ से नहीं निकल सकता। ट्रंप आए, उन्होंने दोबारा से सारे पंगे स्टार्ट कर दिए, रशिया के साथ उन्होंने एक टक्कर ली, चाइना के साथ टक्कर ली, सीरिया के साथ उन्होंने एक जंग स्टार्ट की। तो ये एक सारी चीज़ें थी। उसके बाद अब आ चुके हैं जो बाइडन डेमोक्रेट है। तो जो बाइडन ने आते साथ ही जो सबसे पहला काम किया, उन्होंने कहा जी हम इस जंग से निकल रहे हैं, इसमें अमेरिकन टैक्स पेयर्स हैं, उनके पैसे लग रहे हैं, कैजुअलिटीज़ हो रही हैं और बेशुमार रीजंस उन्होंने एक्सप्लेन की, अब हम इस जंग से बाहर निकलेंगे। तो ये एक पूरी दास्तान थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी कि अमेरिका अफगानिस्तान को क्यों छोड़ा है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके, जो आप कहना चाहें, कुछ चीज़ें आपके जहनों में हैं तो वो ज़रूर कहिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत होंगे। खुदा हाफिज़।